This call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last previous few classes, we were discussing the problem based on trigonometry. We'll continue with the same because trigonometry is the backbone of your mathematics as far as lot many topics are concerned in grade 11th and grade 12th as well. In your UT examination, they are going to start from 1st of September most likely, and the curriculum that would be trigonometry and complex and quadratic equations. So these two chapters will be coming. So a quick formula list as I always begin. Check this out. So it will be a quick recall of the basic formulas. And a lot of the following four set of formulas. Again, next set of four formulas. Now, let us consider questions based on the formulas. You have to prove the following results. Check out, say A part. It's a very simple part. Consider LHS. You have to prove this. So this is considered as your trigonometric identity. In class 10th itself, you have learned the method how to prove trigonometric identities when certain formulas are to be used. Again, in this case, check it out. One sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. 1 minus cos 2 theta. Check out your formula list. It is 2 sine square theta. So it should be learned directly. Next, of course, 2 will get cancelled out. One of the sine factor will get cancelled out. And we're left with cos theta by sine theta, which is equal to cot theta, RHS, hence proved. So probably I've started with a very basic and a straightforward question. Check out this question. Consider LHS 1 plus sine 2 theta plus cos 2 theta over 1 plus sine 2 theta minus cos 2 theta. Look at the symmetry of certain formulas, and most of the time 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is 2 sine square theta. So these are two most important formulas we generally use. So looking at the symmetry, if you observe 1 and plus cos 2 theta. So let me combine first and third term, and the balance term I will write separately. Similarly, look at the denominator. I'll combine these two terms and followed by sine 2 theta as it is. And this is the most important step of this question, because now we need to follow simple formula. Check it out. 1 plus cos 2 theta, it's my learned formula is 2 cos square theta. Sine 2 theta, double angle formula, 2 sine theta cos theta. Same way in the denominator, it is 2 sine square theta, and this is 2 sine theta cos theta. From numerator, I can see it is 2 cos theta, which is common, and in bracket I will left with cos theta
plus sine theta. From denominator, you can again check it out. Now this time 2 sine theta common, and I left with sine theta plus cos theta. 2 cancel. Cos theta plus sine theta cancel. Clearly, I left with cos theta by sine theta as in the last question, and it is cot theta. Hence, proved. Check this out. If you have any doubt, please feel free to ask. But formulas आप ही को याद करने हैं. I cannot learn on your behalf. Before we move on, mark your attendance quickly. Just write P in the chat box, everyone. C part in your homework, it's exactly similar to the B part जो भी हमने किया है, just that यहाँ half angle formulas like 1 minus cos theta combine करा और वो होता है 2 sin square theta by 2, और in the denominator 1 plus cos theta combine करेंगे, वो मैं यूज करूंगा डायरेक्ट फार्मूला ऑफ दिस, एंड साइन थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So in terms of half angle, again one should know how to get these formulas. Let me now consider D part. There are two different ways to solve this question. So option 1, method 1, consider LHS cos theta divided by 1 plus sin theta, and you are to prove this in terms of tan theta. So what I am going to do, consider cos theta का half angle formula, and this is cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. I already have discussed the idea of half angle formulas, so check it out in your notes. कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलेगा ये फॉर्मूला. और कहाँ से डराइव हुआ है? Our main formula was for cos 2 theta, which is cos square theta minus sin square theta. So just half the angle both the sides. So I will get the formula for cos theta. Similarly, now note carefully, this 1 को मैं लिखूंगा cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. क्योंकि हाफ एंगल में लाना है इसीलिए ये लिख दिया. और साइन थीटा का क्या होता है हाफ एंगल? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. The reason is, क्यों किया ये सब कुछ अब क्लियर होना चाहिए. Look at the numerator, a square minus b square, which is a plus b into a minus b. डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखें, इट इज a square plus b square plus 2ab.
which is a plus b का होल स्क्वायर. सो ये एट्थ के ही फॉर्मूला, बट उनकी रिवर्स थिंकिंग से रिवर्स एप्लीकेशन की बात हो रही है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So that becomes a plus b का whole square. One can easily note one of the factor will get cancelled out. ये एक factor ये cancel हो जाएगा, and then we left with cos theta by 2 minus sin theta by 2 over cos theta by 2 plus sin theta by 2. नाउ देयर इज अ सिंपल टेक्निक जो हम थ्रू आउट आगे भी यूज करेंगे. क्वेश्चन मेरा ये साइन कॉस में कन्वर्ट है, बट आई वांट माय आंसर इन टर्म्स ऑफ tan. डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो वन कैन इजीली नोट, ऊपर अगर न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2, आई विल गेट 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा tan थीटा बाय 2. सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा बाय 2. अब इस 1 की वैल्यू रिवर्स में सोचिए, tan पाई बाय 4 होती है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो मैंने इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख लिया. इस 1 को एज इट इज छोड़ दो, बट इमेजिन अ सिचुएशन के आपने इस tan थीटा बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी, tan पाई बाय 4 पहले लिख दिया इनटू ये tan थीटा बाय 2. द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, रीड केयरफुली, क्या बन गया ये, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. I converted this into a direct formula. किसका आ गया ये, tan a minus b, and this is nothing but our RHS, hence proved. So please make a note of this. This technique will be used in lot many other questions which will be followed in 11th and 12th. Any doubt to anyone in this understanding? The method 2 goes like this. Consider LHS, और यहाँ फर्स्ट स्टेप इज 10th क्लास का फॉर्मूला. cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इवन अगर आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं भी किया हुआ आपने, in 11th itself I already considered this case. cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, और नीचे वाले sin थीटा को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा. Why is it so? अब वो मेन चीज आएगी. आप चेक करिए, साइन थीटा का हाफ एंगल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है. तो यहां अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा मान लेता, तो इसका हाफ एंगल से क्या कन्वर्ट होता, 2 साइन थीटा बाय 2, मतलब जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ कर दो. प्लीज चेक इट आउट, इसका हाफ ये होगा. हाफ का मतलब सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया,
और फिर से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। लुक एट द डिनोमिनेटर, ये विच इज एक्चुअली 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म, कुछ ऐसी फॉर्म आ गई। सो कंपेयर करिए और थीटा को रिप्लेस कर दो पाई बाय 2 माइनस थीटा से, तो क्या बन जाएगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंगल का हाफ कर दो, दैट्स इट। हर एक स्टेप में आपके फॉर्मूलाज ही इन्वॉल्व होंगे, वो फॉर्मूला याद के साथ कैसे अप्लाई और कहाँ करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चेक करिए इसके बाद, तो ये 2 से 2 कैंसल, एक कॉस वाला फैक्टर कैंसल, एंड आई लेफ्ट विथ साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, एंगल सेम है, साइन बाय कॉस हो गया tan एंड इक्वल टू RHS। सो ऑफ कोर्स मेथड 2 को अगर मैं कहूं टेक्निकली, तो दिस इज रिक्वायरिंग ओनली 3-4 steps to solve this question. The choice will be purely yours. You can go for either method 1 or method 2. Please make a note of it. Very important है इस तरह का concept. I'm waiting. Okay, let's consider next question. से आपको ये प्रूव करना है। अगेन वेरी सिंपल, आई टेक ई पार्ट, एफ तो कॉस साइन में चेंज करिए इन योर होमवर्क। सो ई पार्ट, कंसिडर LHS। Again, there may be more than one way. One of the option is you rationalize this with 1 plus sin x inside the square root and simplify. But I will use a simpler method. और वो सिंपल मेथड देखिए क्या है, 1 प्लस साइन एक्स पिछले क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ था कहीं पर, सोचिए जरा, हमने यूज करा है 1 प्लस साइन एक्स को, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह से यूज किया था। तो एग्जैक्टली द सेम अप्रोच आई एम गोइंग टू फॉलो इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कैसे यूज होगा अब यहां पर ये चीज, 1 को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख दिया, ये साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस आएगा और फिर से साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला ये हो गया। लुक केयरफुली, न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो आई विल अप्लाई माई क्लास 8th का सिंपल फार्मूला, सो दैट न्यूमरेटर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर वुड बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर आ गए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट कर दीजिए, तो cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। रिकॉल लास्ट क्वेश्चन में भी हम इस एक्सप्रेशन को डील कर चुके हैं, जब cos और sin में ऐसा एक्सप्रेशन है और आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ tan, तो डिवाइड कर दीजिए cos x/2 से। नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। cos x/2 से डिवाइड करा, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये आपको समझ आ जाएगा, ये आ गया। और अब ऊपर वाले 1 को क्या लिखा था, tan π/4, और इसे 1 से मल्टीप्लाई मान लिया यहां पर, सो दैट इट विल बी equal to this, and this converted into the formula of tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, tan A plus B. Check it out, this is nothing other than my RHS, hence proved. Any question from your side? Prove the following result. Very straightforward. I am now giving only the hint. Say A part liya, LHS. This is my LHS. Take the LCM. This would become sin x minus cos x into cos x minus sin x, and ये आ गया cos x plus sin x। और न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो क्रॉस से ये आ जाएगा cos प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर माइनस का साइन है तो ये भी आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x sin x, या चलो 2 sin x cos x लिख दिया, और नीचे इट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। One can easily note when I will open the bracket cos square plus sin square x 1 हो गया था, वो आपस में कैंसल, और क्या बचेगा हमारे पास 2 cos x sin x प्लस 2 cos x sin x। सो बेसिकली sin 2x हो गया ये चीज, और प्लस sin 2x, और नीचे इट इज अ डायरेक्ट फार्मूला ऑफ cos 2x। So 2 sin 2x upon cos 2x, एंगल सेम आ गए, sin by cos is tan, hence proved। मेथड सिमिलर है जो आपने 10th में देखा था आइडेंटिटीज को प्रूव करने का, बट ऑफ कोर्स सिंस नाउ वी हैव लर्न एंड गॉन थ्रू फ्यू न्यू फार्मूलाज, तो उनकी एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होंगी। फॉर दिस बी पार्ट a simple hint, this is tan a plus b, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस tan x by 2 अपॉन
1 माइनस tan x बाय 2। और सेकेंड टर्म क्या आएगी ये वाली जब आप इसको सॉल्व करेंगे? 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई। ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूलाज लास्ट में बनेंगे। एक फॉर्मूला बता देता हूं जो लास्ट में यहाँ यूज करना रहेगा। cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। दिस वुड बी द लास्ट स्टेप जो आपको इस क्वेश्चन में यूज करना रहेगा। सो डू इट इन योर होमवर्क। Prove the following. As far as this D part is concerned, there is a similar to the solved example of NCERT which I already have discussed. आप चेक कर लीजिएगा, मैं सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। That is a solved NCERT example. Let me consider C part. LHS, a nested roots are given. Root के अंदर root given है, तो we call this as a nested root. Note carefully, हायरार्की में अंदर वाले रूट से शुरू करा ये वाले, और 2 कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस cos 4 थीटा। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया। एक फार्मूला फिर से सोचिए, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। इस फार्मूले की ही एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट विल हैपन टू, सोच के देखिए, इससे 1 प्लस cos 4 थीटा कैसे निकलेगा? मैंने एंगल का एक तरह से डबल कर दिया है, तो डबल दी एंगल, दैट्स इट। So what does this will give me? 1 प्लस cos 4 थीटा की जगह यहां थीटा आ जाएगा, ऑफ कोर्स। क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, विच इज 2 प्लस, अगर आप ध्यान से देखें ये आ गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये सॉल्व होकर क्या दे देगा? 2, 4 का रूट, और cos स्क्वायर का रूट हो जाएगा cos 2 थीटा। अगेन 2 कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड इस फॉर्मूला से डायरेक्ट पता है 1 प्लस cos 2 थीटा तो हो गया था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आई विल राइट दी फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, which will be under the root 4 cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का 2 हो गया, और cos स्क्वायर का रूट आ गया cos थीटा, which is equal to RHS, hence proved. But at the same time, check it out, one need to be very very careful. यहाँ इस तरह का आपने किसी ने ना ऑब्जर्व किया,
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज रूट एक्स स्क्वायर? प्लस माइनस एक्स। यस, इट इज नॉट एक्स। कॉमन परसेप्शन कि भाई एक्स स्क्वायर है, रूट का मतलब पावर होता है 1/2, 2 से 2 कट गया और एक्स आ जाएगा। बट रिमेंबर दिस इज एक्चुअली प्लस माइनस एक्स और मॉड एक्स। तो इसका मतलब जब भी लिखा होता अगर मेरे पास से रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज एक्चुअली प्लस माइनस कॉस थीटा और मॉड ऑफ कॉस थीटा। इट डिपेंड्स कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां इस क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, लेट अस अज्यूम सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो उस केस में इसका आंसर जो मैंने ये प्लस में लिखा है उसकी जगह नेगेटिव में आ जाता। बट इतना कंसेप्चुअली हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली तो ये मेरे को बिल्कुल मॉडुलस के साइन यूज करने चाहिए, बट हम बेसिक आइडिया की ही सिर्फ यहाँ बात करेंगे। सर फिर जो हमारा अंदर वाला रूट है उसके अंदर भी तो फिर हमारा माइनस कॉस करके आएगा, फिर वो तो माइनस। ठीक है। चलो, इज इट डिफाइंड और नॉट रूट ऑफ माइनस एक्स? नॉट डिफाइंड। इट इज डिफाइंड if I give you x is negative. यस सर। Think logically. So if already cos negative था, if second quadrant cos already negative है, तो minus of cos theta is well defined. So again एक यस सर। कॉमन हमारी परसेप्शन हो जाती है कि माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव होता है। माइनस एक्स इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इट डिपेंड्स कि अगर एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस। Check this out. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक मैं इस केस में फॉर्मूला बता रहा हूं एक रूल की तरह। अगर एक्सप्रेशन दिया हो a sin x plus b cos x, this expression is always lying between माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, wherein this will be the minimum value of course and this will be the maximum value. Learn this as a standard formula. There is a proper method to justify this, but वो हम नहीं लेंगे। सिर्फ रूल की तरह इसे आपको याद करना है और एग्जाम्पल से अब आई विल क्लियर दिस। क्योंकि अब ये रूल अगर समझ आ गया, my a part and b part are based on this only, so consider a part। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी थी इसकी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेट मी कॉल दिस एज एफ ऑफ थीटा। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिखता, ये थीटा की टर्म में है तो एफ थीटा। कैन आई से दिस इज 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 यस। इंटू कॉस थीटा। तो अब आप चेक करिए, मैंने एक्चुअली कंपेयर किया है इस एक्सप्रेशन से। तो हेयर a इज 1 एंड b इज 1। तो आप चेक करिए बाय फॉर्मूला डायरेक्ट ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह ही 1 रखा हुआ है
and less than or equal to under the root a square plus b square, which gives me minus root 2 is less than or equal to sine theta plus cos theta is less than or equal to root 2. Your required minimum value and your required maximum value of the following expression. तो थीटा कुछ भी एंगल हो जाए, फाइनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो हमेशा इस रेंज के बीच में लाए करेगा, बिटवीन -2 to 2. तो अगर आप चैप्टर 1 की टर्मिनोलॉजी से बात करें तो रेंज ऑफ एफ एक्स या एफ थीटा अगर मैं कह रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज? -√2 से लेकर √2, क्लोज ब्रैकेट. तो डोमेन एंड रेंज अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जनरली बात नहीं की थी, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड के दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Before I take this B part, consider this question. एक पहले अलग से क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं. एफ एक्स आपको गिवन है √3 sin x minus cos x. Find its range. रेंज का मतलब वही मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी है. तो थिंक लॉजिकली, कंपेयर करो इस फॉर्मूला से, कंपेयर इट. A will be √3, B will be and b -1. तो आप चेक करिए, रेंज वुड बी माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा √3 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर. और कितना आ गया ये? चेक इट आउट, बहुत सिंपल है. 3 + 1 4 का रूट 2 होता है. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो मिनिमम वैल्यू दिस फंक्शन कैन टेक इज -2 एंड मैक्सिमम विल बी 2. नाउ लेट मी कंसिडर फाइनली बी पार्ट. आपसे इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम पूछा, या मिनिमम पूछा है, आप मैक्सिमम भी चलिए हम पूछ लेते हैं. दिस क्वेश्चन, सबसे पहली बात, लेट एफ एक्स में अलग से लेता हूं 3 cos x प्लस 4 sin x. चॉइस इज यूअर्स. आप 4 sin x पहले लिख दो प्लस 3 cos x. अब आप लॉजिकली सोचिए, ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर गया तो ये लाई करेगा इस इंटरवल के बीच में. आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b. दैट इज, ये आ गया, कितने वैल्यू आ गई है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये. 16 + 9 25 का रूट 5 आ गया. ये तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है. किसकी? इसकी. बट मुझे साथ में +8 चाहिए, तो बस अब आप थ्रू आउट 8 ऐड कर दीजिए. 8 ऐड करते ही यहां पर भी 8 ऐड हो गया और यहां भी 8 ऐड हो गया. ये आ गया मेरा गिवन क्वेश्चन. ये आ गया 3 और ये आ गया 13. सो मिनिमम वैल्यू वुड बी 3 and maximum value would be 13. Your required answer. Right, ठीक है अनन्या. तो वो ठीक है, -5 to 5 तो ऊपर वाला ये आया था, बट मेन क्वेश्चन में
क्योंकि हमने नोटिस करा था कि वो +8 भी है, इसीलिए मेरे को थ्रू आउट 8 को ऐड करना रहा. So give a ample good practice to this particular formula. 12th में भी ये बहुत यूजफुल रहने वाला है, 11th में तो है ही. Mark your attendance quickly, everyone. And then you can leave the class. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, thank you. Welcome. सर Thank you, sir. Have a good day, sir. Yes. Yeah, good day. सर आपने बताया कि सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स भी होगा सर, सिर्फ मॉड एक्स नहीं होना चाहिए? दोनों ही है. मॉड एक्स को आप प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते हैं क्या? मॉड सर एक्स की मॉड बेसिक एक्स तो सर जब एक्स इज लेस देन 0 तभी तो नेगेटिव आएगा ना. तभी तो मॉड एक्स को जब मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस एक्स, तो वो पूरी डेफिनेशन को आप देखिए. व्हेन आई डिस्कस द आइडिया ऑफ दिस मॉडुलर फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, तो वो दो पार्ट में एज अ पीस वाइज फंक्शन लिखते हैं हम. तो अगर मैं एक्स कहता हूं तो देयर इज अ रूल, क्या कि एक्स इज पॉजिटिव. जब मैं उसे माइनस एक्स कह रहा हूं तो ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग एक्स एज नेगेटिव. तो बोथ द थिंग्स लेकिन आर. प्लस माइनस एक्स तो सर डबल आंसर होगा ना कि सर एक्स है लेकिन वो अरे भैया, पॉजिटिव भी डबल आएगा नेगेटिव. आंसर कब पॉसिबल है ये भी तो सोचो. जब x प्लस या माइनस, जब x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है. इसका मतलब x भी तो दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है. अगर x दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, एज पॉजिटिव और एज नेगेटिव, तो डेफिनेटली आंसर कैन बी प्लस एक्स और माइनस एक्स. लुक एट द बेसिक डेफिनेशन जब मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया था, एंड देयर इज अ वेरी मच कंफ्यूजन अमंग द टीचर्स ऑल्सो. ठीक है, तो नॉट ब्लेम टू यू, राइट. तो टीचर्स भी इस चीज को गलत करवा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए. जो मैंने बताया है, सर मुझे भी एक टीचर ने बताया था कि सर प्लस माइनस एक्स नहीं होगा, सिर्फ मॉड एक्स होगा आंसर. नो, दिस इज प्लस माइनस एक्स. ठीक है, मेरी बात करवा देना उनसे, जो भी कहीं हो, किसी भी लेवल पर हो. लेट हिम और हर स्पीक टू मी, राइट. ओके सर. ओके, थैंक यू.